लास्ट ईयर की रिपोर्ट को देखते हुए इंडिया की पॉपुलेशन है 142.8 करोड़, जिसमें 12% यानी 16 करोड़ लोग ऐसे हैं दो जो ड्रिंक्स अल्कोहल, और 3 करोड़ उसमें से भी ऐसे हैं जिन्हें इसकी लत लग गई है। कोई भी हो, अगर वो किसी के सामने नर्वस हो जाता है और वो अल्कोहल ड्रिंक करने लगे तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है। बचपन से ही बड़ा शर्मीला बच्चा था, और जब वो बियर कभी कभार हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, 2 हफ्ते में एक बार पीना शुरू की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। रेड वाइन में रेस्वेरेट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, जो कैंसर और ब्रेन में जब ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इससे और ऐसे ही बहुत सारी डिसीज से रेस्वेरेट्रॉल रेस्क्यू करता है। तो why is drinking alcohol considered wrong in society? How alcohol makes a person addicted to it? I started to drink more and more and more every day. I come home from work and I start to drink and I just sit there and drink until I pass out on the couch. Approx 3 million pupils की डेथ हो जाती है due to drinking alcohol. Over 3 million people worldwide will die this year to alcohol-related causes. A person wants to quit drinking but he can't. I'm embarrassed how many times I quit and couldn't do it. आदमी शुरू तो एक घूंट से ही करता है, लेकिन कब वो एक घूंट एक बोतल में कन्वर्ट हो जाता है उसको ये पता ही नहीं लगता है। और ये एडिक्शन इस हद तक पहुंच जाता है कि तुमको पता होता है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन तुम उस रास्ते पर चलते जाते हो। At that point, my addiction had gotten so bad that I was paranoid and afraid of everything. एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे करियर के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। And I burned every bridge that I had, virtually unemployable. My options had been eliminated. तुमको लगता है कि अब तुम्हारा जीना बेकार है। My life was eviscerated. तुम्हारी फैमिली तुमसे एक्सेप्टेशंस रखना छोड़ देती है। My family didn't want anything to do with me. तुम्हारे वही दोस्त जो तुमसे एक समय पर कहते थे कि मैं तुम्हारा साथ तो जिंदगी भर दूंगा, वो दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। I lost my friendship. और तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। I had no way forward. डॉक्टर के बेटे से, एक अच्छी फैमिली के बेटे से भीख भी मंगवा दी। I, for maybe the first time, am proud of myself that I didn't quit because it's demoralizing. Like, to truly be powerless over something is fucking demoralizing. It's so rough. We've known since the 1950s, the American Medical Association has known that alcohol use is a disorder, is a disease of the brain. It's that awful thing that you hear every alcoholic talk about, and if they don't talk about it, they're lying. Alcohol consumption, even in the low amounts, causes harm to the entire body. जब हमें किसी की लत लगती है तो हमको उसमें अपनी लाइफ दिखने लगती है। लत किसी की भी हो सकती है, मोबाइल की, स्मोकिंग की या और किसी की। और जब हमको उसमें अपनी लाइफ दिखने लगती है तो वो लत की लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद या तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे या सुसाइड। We've been brainwashed into thinking that there are just 2 types of drinkers. There are those at rock bottom, alcohol dependent, and there's everybody else, happy social drinkers who are just occasionally a bit lightweight and can't hold their beer. From 15 to 24, I drank and used my way through life and eventually ended up in Boston. Excessive drinking is considered 13 or more drinks a week. For non-alcoholics, I mean, I think everyone should just know the health risks, especially women where the risks for breast cancer and other types of cancers are elevated so very much. So let's start the video and know everything in detail, and we will also talk about how we can leave any addiction. एडिक्शन, लत लगने का सीधा मतलब है कि हम किसी चीज पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बिना रह पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लत लगने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक किसी चीज से मिलने वाला आनंद, डिप्रेशन को कम करने का तरीका या आदत बन जाना। तो आओ इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन नेम का एक केमिकल रिलीज होता है। बेसिकली डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज ट्रांसमिट करता है और कंट्रोल करता है मैनी फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस को, लाइक हैप्पीनेस, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो ऐसे में डोपामिन हमें गुड फील कराता है, साथ ही में हमें मोटिवेट करता है कि हम उन एक्टिविटीज को बार बार रिपीट करें। और जब हम उन एक्टिविटीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती हैं।
एडिक्शन। जब हम लोग कोई मोटिवेशन सुनते हैं तो डोपामिन इंक्रीज होता है और हमें इंस्पायर करता है कि हम और मेहनत करें। देखो, लत सिर्फ अल्कोहल, स्मोकिंग इनकी ही नहीं बल्कि और भी चीजों की हो सकती है, जैसे चाय, कॉफी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी की लत से परेशान हैं। बिना इसके उनका दिन शुरू नहीं होता है। अगर उन्हें किसी दिन चाय या कॉफी ना मिले तो उन्हें सिरदर्द या चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। लत लगने का एक और बड़ा रीजन है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है दुख, चिंता और डिसअपॉइंटमेंट। जब आदमी इनको लगातार फेस करता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद वो सोशल एक्टिविटीज से दूरी बना लेता है और वो उन चीजों की ओर अट्रैक्ट होता है जो उन्हें तुरंत रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लाइक वाइन, वाइट पाउडर। डिप्रेशन में डोपामिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे लत इंक्रीज होने लगती है और धीरे धीरे आदमी उस पर डिपेंडेंट होने लगता है। अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्स्टली सुगरी सोर्सेस सच एज ग्रेप्स, बार्ले और अदर ग्रेन्स का यूज किया जाता है। इसके बाद इनका जूस निकाला जाता है और इसे ईस्ट में मिलाया जाता है। ईस्ट एक प्रकार का यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये फंगी के ग्रुप में आता है जिसका यूज फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है। जब हम ईस्ट को सुगरी सोर्सेस के जूस में मिलाते हैं तो वो उसे अल्कोहल और CO2 में चेंज कर देता है और इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग होता है, दिन से लेकर हफ्ते भी लग जाते हैं। डिपेंड इस पर करता है कि अल्कोहल कौन से टाइप की बनाई जा रही है। कुछ टाइप्स की अल्कोहल में डिस्टिलेशन प्रोसेस को भी किया जाता है, लाइक विस्की और वुड का। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में फर्मेंटेड लिक्विड को गर्म किया जाता है और फिर उससे रिसीव्ड वेपर को ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस से अल्कोहल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और प्योरिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद इसे बॉटल में कर दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए एजिंग होने के लिए रखा जाता है, विच इम्प्रूव्स इट्स टेस्ट एंड क्वालिटी। अभी बात करते हैं कि अल्कोहल बॉडी में कैसे वर्क करती है। जब हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करती है, जहां से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। थ्रू द ब्लड स्ट्रीम अल्कोहल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्पेशली ब्रेन और लीवर तक पहुंचती है। ब्रेन में अल्कोहल न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालती है, जिससे हमारा मूड, बिहेवियर चेंज होने लगता है। और ये गामा एमिनोब्यूटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में गाबा कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम का, इसकी एक्टिविटीज को स्लो कर देती है। इसके अलावा ये डोपामिन को इंक्रीज करती है, जिससे तुमको अब पता है क्या होगा, आदमी प्लीजेंट फील करता है। लीवर के अंदर अल्कोहल को तोड़ने के लिए एंजाइम होते हैं, जिनमें मेन है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में चेंज कर देता है, विच इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में चेंज हो जाता है, जो कम हार्मफुल होता है। और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। देखो, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल डिपेंड करता है कि पर्सन की एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, वेट कितना है और सबसे इम्पोर्टेंट आपने कितना अमाउंट कंज्यूम किया है। अल्कोहल का स्मॉल अमाउंट रिड्यूस कर सकता है स्ट्रेस को और इंक्रीज कर सकता है सोशिएबिलिटी को, बट बिकॉज ऑफ डोपामिन हम स्मॉल अमाउंट पर नहीं रह पाते हैं, हम हाइयर डोज पर पहुंच जाते हैं। हाइयर डोज इफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम। और जब हम एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करने लगते हैं तो वो बॉडी पे बहुत तरीके से असर डालती है, सच एज लॉन्ग टर्म लिवर डिसीज, हार्ट डिसीज एंड नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इससे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम लोग किसी भी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। जब हमको किसी चीज की लत लगती है तो हमको ऐसा लगता है कि अब उसे छोड़ पाना तो इम्पॉसिबल है, बट इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। हमको इम्पॉसिबल वही लगता है जो हमारे लिए कर पाना डिफिकल्ट होता है। अगर आपको किसी भी लत को छोड़ना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, लाइक उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप इस बारे में विचार करें कि आपको लत लगी कैसे, आप उस जाल में कैसे फंसे। आप इस बारे में विचार करें कि आपको लत क्या दे रही है, क्या आपको लत पैसा दे रही है? नहीं, वो आपसे पैसा ले रही है। जब आप एडिक्शन के लॉसेस के बारे में जानेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उसको छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे अल्कोहल के एडिक्शन के चलते आपकी फैमिली से आपकी नहीं बनती, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा ही मैसी हो जाता है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, आपकी नौकरी छूट जाती है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता है। इसके बाद आप फिर से उसी लाइन पर जाने लगते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये सब खेल माइंड का है। तो चलो मैं आपको
आपको बताता हूँ कि आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा तो आप किसी भी एडिक्शन के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। फर्स्ट, आप मेडिटेशन करें। एक शांत और सुविधाजनक स्थान पर सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपनी पीठ सीधी रख के हाथ घुटनों पर रख सांस पर केंद्रित हो जाएं। सांस लेने और छोड़ने की प्रोसेस को फील करें। अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो उसे आने दे और जाने दे, बिना उसके बारे में कुछ सोचे। बाकी आपको बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। सेकंड है माइंडफुलनेस। किसी एक काम पर ध्यान दे। दिन भर की एक्टिविटीज में एक समय पर एक ही काम पर कंसंट्रेशन रखें। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर, उसके स्वाद, उसकी खुशबू और उसके टेक्सचर को महसूस करें। अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे, आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। और जब आप ये सब करेंगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा, और अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग। व्हेन यू फील इट विद पॉजिटिव थॉट्स, योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज।